Very good morning class, Jai Narayan. Welcome to your English class again. So today we will discuss a very interesting topic of your English language, that is figure of speech, and in Hindi alankar. Alankar means jewelry. So what do you understand by the particular word jewelry? आप ज्वेलरी से क्या समझते हैं, अलंकार से क्या समझते हैं? सो व्हेन अ वुमेन वियर्स द ज्वेलरी, ठीक है, जैसे मैंने ज्वेलरी पहनी है, लाइक दिस इयररिंग्स, शी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, यू नो, वो बहुत सुंदर लगती है. सो इन द सेम मैथड इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो देयर इज़ अ टर्म दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? जैसे एक लेडी को सुंदर बनाने के लिए ज्वेलरी जब वो पहन लेती है तो सुंदर लगती है ना, उसी तरह वर्ड्स में भी कुछ ऐसा फ्रेम हम कर देते हैं जिससे वो वर्ड, द फ्रेम ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस, वो काफ़ी इफेक्टिव, ब्यूटीफुल लगता है. दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच? वर्ड्स ऑफ फ्रेज दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, हमारी लैंग्वेज को जो ब्यूटीफुल बनाता है, effective and impressive, known as figure of speech. Or you may say a figure of speech is a departure from the ordinary form of expression. ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन से जो क्या करे, थोड़ा सा डिपार्चर हो जाए, यानी कि मीनिंग बदल जाए उसकी, थोड़ा और सुंदर इफेक्टिव बनाने के लिए, फ्रॉम द एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट. सो यू कैन produce a greater effect in your language, in your sentence, by using figure of speech. So there are so many types of figure of speech. Generally there are 23 or 27 types of figure of speech, but today we will discuss the main types of figure of speech. Now let us discuss one by one. So first of all, the simile and the metaphor. Both are of the same kinds, दोनों एक ही जैसी हैं. Metaphor is a implied simile. What is the main difference between simile and metaphor? What is simile? Simile कैसी figure of speech है? In simile, a comparison is made. Underline this word comparison. Okay? A comparison is made between two objects. ओके, दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसके बीच में आप कंपैरिजन करोगे. ओके, यू हैव टू कंपेयर द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक, सो, एज, which have however at least one point in common. For example, if I said कि your lips is like a rose, so here the lips is compare with the rose. हमने लिप को किससे कंपेयर किया? रोज से. Life is like a dream, so here life is compared with the dream. So that is the simile where you can compare the two objects or two things of different kind by using the word like, so, as. For example, my love is like a red red rose. So here my love means, यहाँ पे love को compare किया गया है. यहाँ पे love यानी कि कोई beloved है, ठीक है. beloved means वाइफ भी हो सकती है वो पोएट की, ठीक है. My love is like a red red rose, यानी कि इनका लव कैसा है? बिल्कुल रोज के जैसा है. That is simile. Now what is metaphor? Metaphor is implied simile. In metaphor also two things of different kinds compared, यहाँ भी compare होती है, but without using the word like, so, as. यहाँ पे हम like, so, as का यूज़ नहीं करते हैं. For example, if I said my love is a rose, हमने इस like को क्या किया? हटा दिया. तो that is metaphor. My love is a rose.
लाइफ इज ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, अगर इफ आई सेड लाइफ इज लाइक अ ड्रीम दैट इज सिमली, लाइफ इज ड्रीम दैट इज मेटाफर. ओके, now let's move towards further. The third type of figure of speech, that is personification. Personification, here is the hidden word, that is person. Person. Okay, so in personification, inanimate objects, inanimates means that cannot breathe or alive, ऐसे objects जो जिंदा ना हो, and abstract nations. ओके, कोई abstract object are spoken of and having life and intelligence. मीन्स कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी वस्तु जो क्या हो, जो निर्जीव हो, जो बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, उसके अंदर जब हम ह्यूमन क्वालिटी ला दें, वो बात करने लगे, तो दैट इज द पर्सोनिफिकेशन. लव इज ब्लाइंड. सो नाउ यू टेल मी कि वेदर द लव इज ब्लाइंड, लव इज लाइक अ पर्सन? नो, लव क्या कोई पर्सन है? लव इज अ एब्स्ट्रैक्ट थिंग. प्यार क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है. तो लव कभी ब्लाइंड हो सकता है? लव इज ब्लाइंड. सो लव इज ब्लाइंड. यहाँ पे हमने क्या कर दिया? लव को पर्सोनिफाई कर दिया. हियर वी कैन पर्सोनिफाई द लव. नाउ द फोर्थ टाइप इज हाइपरबोल. हाइपरबोल in Hindi means अतिशयोक्ति. So it is a figure of speech, FOS means figure of speech, in which things are shown as greater or less, better or worse as they really are. Means चीज़ों को इतना बढ़ा के बोलना, इतना कम करके बोलना, वो जैसी हैं उससे बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. तो क्या ऐसा हो सकता है कि अरेबिया के सारे परफ्यूम को हम ला दें और वो आपके हाथ को महका ना पाए? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो पर्सोनिफिकेशन यही होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स. तो क्या कोई इतना रो सकता है कि पूरा ओशियन हो जाए? तो दैट इज़ द हाइपरबोल इन विच द थिंग्स are shown as greater or less than they really are. That is the hyperbole. Now the fifth type of figure of speech, that is irony. What is irony? Irony means in Hindi व्यंग्य. अभी आपने देखा होगा ना कि हम कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं जो कि व्यंग्य की तरह काम करती हैं. मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं लेकिन हमारा मतलब कुछ और है. हम बोल ये रहे हैं, मतलब हमारा कुछ और है. कभी कभी हम कहते हैं ना, ओके ओके और स्मोक कीजिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए. दैट इज़ आयरनी. बातों को हम ऐसे बोले किसी को कि वो आपके ऊपर तीछ क्या करे, व्यंग्य दे के जाए. सो इन इंग्लिश, आयरनी इज़ यूज ऑफ वर्ड्स to convey a meaning that is opposite, underline this word, that is opposite of what actually said. means जो कहा जा रहा है जस्ट उसका अपोजिट मतलब निकल के आए. so that is irony. for example, a fire station burned down. a fire station burns down. so मुझे ये बताइए कि क्या कभी कोई फायर स्टेशन बर्न डाउन हो सकता है? नो. ये क्या है? जस्ट अपोजिट बात हो गई. स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. सो वेदर द स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ और बैड, इट इज़ बैड ना. और यहाँ क्या लिखा है? स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. सो मीन्स हेयर वी कैन सी द यूज ऑफ आयरनी. द सिक्स्थ टाइप इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स इन हिंदी विरोधाभासी. विरोधाभासी मीन्स जस्ट अपोजिट, जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ इटसेल्फ. जो हम बात बोल रहे हैं वो हमें खुद ही समझ में नहीं आ रही, जस्ट हम उसका विरोध, वो सेंटेंस खुद अपने में एक विरोध है. ठीक है. सो इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट अपीयर टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ. मीन्स जो भी स्टेटमेंट आपके सामने होगा वो अपने आप में खुद क्या होगा? एक विरोधी होगा. जैसे लिसन
to the sound of silence. Listen to the sound of silence. Listen to the sound of silence. तो sound और यहाँ पे दिया है silence, तो क्या कभी silence का sound हो सकता है? So that is the paradox. Paradox means विरोधी भाषी, means in this figure of speech the statement, the sentence is itself the contradictory. खुद अपने में ही एक contradiction पैदा करे. Now let's move towards further. The 7th type of figure of speech is synecdoche. Okay, synecdoche is a figure of speech in which a part of something represent the whole. यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है और इसका एक छोटा पार्ट है. यानी कि ये पार्ट अगर आ जाए, ये एक मान लीजिए कि दिस इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये इंडिया का एक सिटीज़न है, तो ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये सिटीज़न है इंडिया का और ये पूरे इंडिया को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दैट इज synecdoche. मीन्स इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट अ होल और इट मे यूज अ होल टू रिप्रेजेंट अ पार्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन अमेरिका कुड नॉट सॉल्व दिस सम. ठीक है, सारे बेस्ट ब्रेन जो अमेरिका के हैं वो भी इस सम को सॉल्व नहीं कर सकते. हियर द वर्ड ब्रेन्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अ ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अ ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स. ओके, सो अ पार्ट ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट the whole community, that is the synecdoche. The last one is metonymy. What is metonymy? When something is used to represent something else. जब कोई चीज़ है, जो हमने कोई वर्ड सेंटेंस बोला, कोई भी फ्रेम किया, वो किसी और को सब रिप्रेजेंट करे. यहाँ पे कोई एक पार्ट पूरे ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हम बात बोल रहे हैं, जो हम वर्ड बोल रहे हैं, वो किसी और चीज़ को रिलेट कर रहा है, किसी और स्टेटमेंट को रिलेट कर रहा है. मीन्स हमारा स्टेटमेंट जो हम बोल रहे हैं उसमें जो वर्ड्स हैं दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स. Okay, for example, when something is used to represent something else, for example, the pen is mightier than sword. Okay, अब बताइए, here the pen is represent the poets. यहाँ पे पेन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पोएट्स को, and sword is represent the warriors, and pen is represent the वॉरियर्स. यहाँ पे स्टेटमेंट ही आपका चेंज हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन अमेरिका कुड नॉट सॉल्व दिस सम्स. मीन्स यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स की बात हो रही है कि ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स पूरे सॉल्व नहीं कर सकते. एंड हेयर इन मेटोनमी, वॉट मेटोनमी, हियर द वर्ड्स जो यहाँ पे जो भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ द इन द डिफरेंट लेवल. मीन्स ये वर्ड्स जो हैं ये खुद ही क्या होंगे, किसी और को रिलेट करेंगे. सो टुडे हमने क्या क्या पढ़ा, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल एंड पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, पैराडॉक्स, synecdoche, metonymy. Okay, hope you all are understand very well. Okay, if you have any problem then ask me. Thank you.